Namaskar. Once again, welcome to each one of you in this Monday Manthan series where we regularly try to discuss the important topic. As we know, in the present time, to topic of the discussion is financial statement of non-corporate entities as per the guidance note issued by the ICA. So, next 45 minutes we will try to cover the topic subject matter. Many members have already been discussed about this subject at various study circles and various other platforms. We also try to analyze the guidance note in light of the present scenario of the non-corporate entities. If you have any query, you can post in the chat box. Later on, we will try to answer each queries. क्योंकि आज की डेट में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस प्रकार से हम बनाएं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का, दिस इज वेरी टिपिकल. सो जस्ट sharing your presentation. We will try to cover as little fast so that subject matter can be covered. Presentation is visible. मैसेज के थ्रू आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं. Yes. So Sagar ji, once again welcome to each one of you in this Monday Manthan series. If we talk about the financial reporting, what element should be covered in the financial reporting and how we have to prepare the financial reporting of corporate and non-corporate entities. First, we would try to see there are so many formats prescribed for the financial reporting. If we see Ind AS and accounting standard notified by MCA, this is applicable in case of corporate entities. कंपनीज की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच हैज बीन नोटिफाइड बाय द एमसीए एंड इंड AS which has been notified for the certain class of companies, it is applicable where a net worth is more than 250 crores and if we say listed company and subsidiary or holding of the listed companies. नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपनीज जब हम बात करें नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लगते हैं दैट इज issued by the ICI. Accounting standard issued by the ICI, it is applicable for each and every class of entities, whether it may be companies or other than companies. कंपनीज का स्टेटस हम ऑलरेडी देखते आए हैं कि किस तरह से अगर कंपनीज के फाइनेंशियल्स की बात करें तो शेड्यूल 3 में हम लोग प्रिपेयर करते हैं. शेड्यूल थ्री में फर्दर देयर आर 3 डिविजन्स. डिवीजन 1 आई गैप के अकॉर्डिंग अगर हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं. डिवीजन 2 टॉक्स अबाउट इंड AS फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिवीजन 3 इंड AS compliance NBFC financials. So these are covered by this schedule 3. So moving ahead, what class of entities are not covered under this? LLPs and non-corporate entities. LLPs के लिए separate guidance note which has been issued by the ICA that is applicable for corporate form of partnership firm. So that is applicable since beginning. Now non-corporate entities के financials में what component will be there? Balance sheet, profit and loss, cash flow statement, accounting policy, notes to account. दीज आर द कंपोनेंट जो हम फाइनेंशियल्स कॉर्पोरेट के केस में बनाते थे वही आज की डेट में हम नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के केस में प्रिपेयर करेंगे. सर्टेन क्लास ऑफ accounting standards are exempt for non-corporate entities. So we will see later on कि कौन से AS हमारे exempt हैं जिसकी वजह से हमारे कैश फ्लो या अदर डेफर्ड टैक्स या एम्प्लॉय बेनिफिट्स ऐसे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिनको हमें कंप्लाइंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो उनको भी हम लेटर ऑन देखते हैं. बट अगर आज की डेट में हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं तो बैलेंस शीट P&L कैश फ्लो के साथ हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रोफाइल ऑफ द कंपनी इट इंक्लूड्स एंड नोट्स टू अकाउंट. दीज एलिमेंट शुड बी कवर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो पर्टिकुलर कोई भी स्लाइड से रिलेटेड यू कैन पोस्ट इन द चैट बॉक्स और आई विल टेक अप इन द मिडिल or at the end. So next we see
This is the link of guidance note. I will share this presentation. You can download from this there. Before moving in on the next slide, my question to each one of you, whether this guidance note is mandatory or recommendatory, because कहीं ना कहीं ये सुनने में आता है कि guidance note is for the guidance only, or whether it is mandatory. Can anyone reply? Guidance note, whether it is mandatory or it is recommendatory. Mandatory. Narendra Singh ji. Mandatory. So many members are saying, and it is absolutely correct. Guidance note, ICA pronouncement जितनी भी होती है, whether it in the form of standards, guidance note, pronouncements, council directions, they all are mandatory in nature. बट टेक्निकल गाइड की अगर मैं बात करूं, टेक्निकल गाइड अर्लियर देयर हैज बीन इशूड ए टेक्निकल गाइड ऑन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनसीई. Technical guidance is for the technical guidance only, that is not mandatory. So technical guidance has been superseded by this guidance note. Earlier they have issued in 2022. In 23 में they have issued guidance note by making this mandatory from the date from the financial year starting from 1st April 2024. So 1/4/24 से कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा उसके अगर हम फाइनेंशियल्स बना रहे हैं, देन दिस गाइडेंस नोट इज मैंडेटरी. अगर इसकी हम एप्लीकेबिलिटी देखें तो हमारे जो कोड ऑफ एथिक्स का क्लॉज 9 है, पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल, विच टॉक्स अबाउट professional accountant should be aware of and consider guidance not applicable to the engagement. And a professional accountant who does not consider and apply the guidance note included in the relevant guidance note should be prepared to justify the appropriateness and completeness of the alternate procedure adopted by him to deal with the objective and basic principles set out in the guidance note. So if you are violating, if you are deviating, you have to prepare for justification for the appropriateness and completeness of the alternate procedure which you have followed for preparation of the financial statement. So it means it is mandatory, and this is the procedure by providing आपको गाइडेंस नोट कंप्लाई करना है, और नहीं कर रहे हैं तो अप्रोप्रिएटनेस एंड कंप्लीटनेस के लिए आप कैसे जस्टिफाई करते हैं, ये मैं रिक्वेस्ट एवरीवन, मैं लॉक करता हूँ से 1 सेकेंड. allow participant to mute themselves. For the timing, not I have disallowed the option to unmute. Later on, I will give the option. गाइडेंस नोट की अगर मैं बात करूं, कब एप्लीकेबल है? When the compliance of the attendance note is mandatory for CA in practice, when he discharging any attestation function. It means if you are attesting any financial, अगर टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है तो टैक्स ऑडिट के फॉर्मेट में करोगे. अगर टैक्स ऑडिट नहीं रिक्वायर्ड है, स्टिल यू आर अटेस्टिंग फाइनेंशियल, देन इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. It is mandatory for CA in practice to comply with the guidance note. किसके लिए एप्लीकेबल होगा गाइडेंस नोट? बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज टू प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट कौन है? प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, अदर एंटिटीज, दे हैव टू कंप्लाई. अगर वो कंप्लाई नहीं करती हैं तो हमारा सीए एक्ट उनके ऊपर गवर्न नहीं करता, बट सीए इन प्रैक्टिस हैज टू इंश्योर वेदर दिस फाइनेंशियल्स हैज बीन प्रिपेयर्ड एज एज पर द गाइडेंस नोट. सो कंप्लायंस चेक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर फाइनेंशियल्स नहीं प्रिपेयर्ड हैं, देन वी विल मूव फॉर द क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन कैसे होगी, मैं आगे हम लोग एक बार देखेंगे. अंडर दिस गाइडेंस नोट वेदर वायलेटिंग, अगर हम इस गाइडेंस नोट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो माय क्वेश्चन टू ईच वन ऑफ यू, वेदर एनी मेजरमेंट ऑफ इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी आर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर मैं बात करूं, 4 चीजें होती हैं: इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी. आर दीज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड बाय नॉन फॉलोइंग द presentation prescribed in the guidance note? So answer is no.
No. Yukti ma'am, no. Because this guidance note provide the framework only. This provide the framework only. So asset liability income expenditure are not going to be impacted by non-following of this part. So at the time of making qualification you will write, मैंने draft sample भी prepare किया हुआ है, I will show you and share with each one of you कि आप जो वहाँ लिखेंगे कि इनकम फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आर नॉट गोइंग टू बी इम्पैक्टेड, only departure with regard to preparation of the financial statement. So this is minor qualification you have to write in your basis of qualification. So sequence अगर मैं देखूं तो when it is mandatory, when such NC is under any attestation requirement by practicing CA with respect to its financial, जहाँ पर tax audit required है, then also if any special purpose financial statement जहाँ पर हम क्लाइंट को केवल बैंक में फाइनेंशियल सबमिट करने के लिए या कोई स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी क्लेम करना है और वहाँ पर फाइनेंशियल्स मांगे गए, सो वहाँ पर अगर हम अटेस्ट कर रहे हैं then it is our duty to ensure whether guidance note has been followed or not. What guidance note not complied with, then professional misconduct at the part of CA in practice. अगर हम इसकी compliance नहीं करते हैं तो it will be a professional misconduct. And as far as NC is concerned, there is no contravention per se because C Act not applicable on such NCE. अगर NCE required नहीं है कहीं भी financials को submit करने के लिए, then they can prepare as per their own wish. सो वहां पर रिक्वायरमेंट आएगी जहां पर हम किसी फाइनेंशियल्स को अटेस्ट कर रहे हैं. ऑडिटर्स ड्यूटी की अगर मैं बात करूं, एज पर एस ए 700 प्रेस्क्राइब द फॉर्मेट प्रेजेंटेशन, जहां पर हमें फाइनेंशियल्स का अगर हम रिपोर्ट इशू कर रहे हैं तो हाउ वी हैव टू इशू द रिपोर्ट, वेदर ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट हैव बीन कवर्ड, what key element you have to verify before issuing the audit report. Financial statement adequately disclose the significant accounting policy. सभी accounting policy significant, which is significant, it has been disclosed. Accounting policy selected and applied are consistent. If there is change you have to disclose. Estimate made by the management are reasonable. There are four keywords under this D clause. The information presented in the financial statement is relevant, reliable, comparable, and understandable. So you have to ensure the relevancy, reliability, comparable. Comparable भी अगर हम बात करें तो this guidance note prescribe the financials should be presented in a comparable manner. It means comparable year financials numbers has to be presented mandatory. अभी तक हम नहीं बनाते थे तो अब बनाना शुरू कर दें. इट इज नाउ द ड्यूटी ऑफ अवर सेल्फ टू वेरीफाई कि कंपेरेबल बने हैं फाइनेंशियल्स या नहीं बने हैं, एंड दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल to the users of the financial statement, whether it may be shareholder, users, bankers, government departments. So we have to ensure all those things. The financial statement provide adequate disclosure to enable the intended user to understand the effect of the material transactions. अगर कोई material transactions हुई हैं, that has to be disclosed and conveyed properly in the financial statement through notes to accounts. And terminology used in the financial statement, including the title of the each financial statement, is appropriate. जहां पर जो टर्मिनोलॉजी गाइडेंस नोट में प्रेस्क्राइब की गई है, जैसे हम अभी तक डेटर्स क्रेडिटर्स यूज कर लेते थे, तो अब सन्डे डेटर्स जहां पर हम बात करेंगे ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, इस तरह एसिड्स की जगह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स. सो दिस टर्मिनोलॉजी वी हैव टू यूज एज पर द प्रेस्क्राइब गाइडेंस नोट. व्हाट व्हाट आर द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सभी प्रकार की जितनी भी कंपनीज और एलएलपी के अलावा जितनी भी एंटिटीज हैं दे ऑल आर कवर्ड. सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, एंड सोसाइटी, ट्रस्ट एंड एनी अदर अथॉरिटी. सो ऑल एंटिटीज हैज बीन कवर्ड अंडर दिस गाइडेंस नोट.
This guidelines does not applicable on the LLP because separate guidance has been issued by the ICA. Now, some key important point which is applicable on the preparation and presentation. Comparable already हमने बात करी कि comparable of the previous year need to be mandatorily reported in the balance sheet, profit and loss, including notes to accounts. So every place you have to prepare comparable also. Now rounding off. Second point, rounding off. Depending upon the total income of the non-corporate entity, the figures appearing in the financial statement may be rounded off as follows. So rounding off is not compulsory. It can be. You may prepare the financial as per rounding off and you may not prepare. But if you are preparing as per rounding off financials, then you have to prepare this table. Less than 100 crore rupee turnover, total income, then nearest to the hundred, thousands, lakhs or million. And अगर total income उसकी 100 crore और above है, then to the nearest lakhs, million or crore or decimal thereof. So rounding off is not compulsory. And if you are preparing, then you have to follow the prepare depreciation to be calculated as per the AS10 instead of income tax. यस महेंद्र जी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं इसको अभी एएस की एप्लीकेबिलिटी में देखेंगे कि डेप्रिसिएशन हम किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं और क्या होना चाहिए। There are some more important point where we talk about relevant applicable AS and all other financial statement will override such recommended format. AS में कोई अगर डिस्क्लोजर की बात कही है, कोई प्रेजेंटेशन की बात कही है, that will supersede override the guidance note. So AS will supersede the guidance note format recommended if anywhere disclosure requirement is there, and you have to disclose all the recommended formats that are in addition to or not in substitution to as per the disclosure requirement is specified in the ES. थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बात कर रहा है क्रॉस रेफरेंस टू एनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। नोट्स टू अकाउंट में कोई इन्फॉर्मेशन होगी डेट हैज टू बी क्रॉस रेफरेंसिंग विद द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। कहाँ पर हमने क्या दिखाया है उसकी क्रॉस रेफरेंसिंग ऑलरेडी हम अगर कॉर्पोरेट एंटिटीज के फाइनेंशियल्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें पता होगा कि हम किस तरह से उसको नोट्स में डिस्क्लोज करते हैं, उसकी क्रॉस रेफरेंसिंग करते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहां पर हम बात करते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे P&L पे मेंशन की गई है, अगर वो हमारी एंटिटीज पर रिक्वायर्ड नहीं है। सपोज कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है जहां पर डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन नहीं है, इस साल भी नहीं है, नेक्स्ट ईयर भी नहीं है, डेफिनेटली डेफर्ड टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल, AS22 इज नॉट एप्लीकेबल इन सर्टेन क्लास ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। कौन सी क्लास है अभी हम आगे देखते हैं। तो वहां पर उस लाइन आइटम को वी कैन रिमूव। So these are saying कि balance shall be maintained between the excessive details that may not assess users of the financial statement and not providing important information as a result of too much aggregation. Wherever required, जहाँ पर आपको लगता है कि it is not required, then you can remove that point from the face of the balance sheet. But you cannot add certain information on the face of the balance sheet. You want to add, then you can add through the notes to account. Once a unit of measurement is used, it should be uniformly in the फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो कहीं पर हमारी एक्सपोर्ट सेल हुई है, एक्सपोर्ट सपोर्ट $10,000 की है, तो हम उसको $10,000 में नोट्स में नहीं डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि हमारी हमारी यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है INR। तो INR में फाइनेंशियल्स बना रहे हैं तो नोट्स में भी हम सारी इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्मली उसे उसी फॉर्म INR में डिस्क्लोज करेंगे। डायरेक्टर फाइनेंस। मैं सारे क्वेश्चंस ये भी जितने भी क्वेश्चंस हैं आई विल टेक अप एट द एंड सो दैट ये टॉपिक के साथ भी कवर हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर मैं लास्ट में एक साथ दे दूंगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बेयर विथ मी। Another disclosure required under this financial statement where they say the following shall be disclosed by way of notes regarding aggregate expenditure and total income of the following item, means income or expenditure के regarding certain information you have to mandatorily disclose
separately disclosed through notes to account, not on the face of the balance sheet. So first one, employee benefit expense, जहाँ पर हम face of the P&L दिखाते हैं employee benefits, then separately we have to disclose salary and wages, contribution to the PF and other fund, staff welfare. बी पॉइंट अगर हम देखते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, बोथ आर कवर, इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड 1% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन और 1 लाख रुपी, विच एवर इज हायर. सो कोई एक्सपेंडिचर या इनकम 1 लाख से ऊपर है या 1% से ऊपर है, then you have to disclose separately on the in the notes to account that expenditure. For example, एक एंटिटी है, छोटी पार्टनरशिप फर्म है, वो एडवर्टीजमेंट पे 2 लाख रुपए खर्च करती है. तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो एक्सपेंडिचर सेपरेटली शो करने की जरूरत है, या हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को अदर एक्सपेंसेस में, मिसलेनियस में डालकर हाइड कर सकते हैं. सो दे सेड कि डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशनल रेवेन्यू यू हैव टू ascertain whether it is required to disclose separately or not. अगर हमारी एंटिटी की टर्नओवर 1 करोड़ रुपये है, देन यू हैव टू डिस्क्लोज बिकॉज इट इज एक्सीडिंग द 1%. एंड सपोज अगर एंटिटी की टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, सो 5 करोड़ का 1%, 5 लाख. सो 5 लाख से कम है, विच एवर इज हायर, और 1 लाख और 5, जिसमें 5 लाख से अगर ज्यादा है, तब डिस्क्लोज करने की आवश्यकता है. 2 लाख रुपए अगर रेवेन्यू हमने जो एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया, डेट कैन बी शोन इन द other expenses also, depending on the total revenue of the operation. So we have to see that separately. And these are additional item that has to be shown separately. Carrying amount of the investment, अगर कोई adjustment हुई है carrying amount of investment में, net gain, foreign currency fluctuation, अगर कोई income और loss बुक हुआ है, आइटम, एक्सेप्शनल आइटम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो हम लोग ऑलरेडी पहले से अलग सेपरेटली दिखाते आ रहे हैं, या प्रायर पीरियड आइटम्स. प्रायर पीरियड आइटम में एक क्वेरी थी कि कोई चेंजेस आए, नो देयर इज नो चेंजेस इन द प्रायर पीरियड एक्सपेंस, बट यहाँ पर उन्होंने बात करी कि सेपरेटली हैव टू डिस्क्लोज. These are certain other expenditure incurred on each of the following items separately for each item. You have to disclose separately these items in the notes through the notes to account. जहाँ पर हम देखते हैं consumptions of store and spares, power, fuel, rent, repair, maintenance, repair to the building, machinery, insurance, taxes, or miscellaneous expenses. These are the head which you have to disclose separately in the uh, notes to account. कंसिक्वेंस फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर ये गाइडेंस नोट हम कंप्लाई नहीं करते हैं, तो व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस. First one is losing the stakeholders trust. Investors, creditors, and other stakeholders may not be confident on the entity's financial integrity, because if it is prescribed by the guidance note of ICA, then it you have to prepare as per the format only. ऑडिट क्वालिफिकेशन, ऑफ कोर्स देयर विल बी ऑडिट क्वालिफिकेशन, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे. रेगुलेटरी पेनल्टी, इस अभी तक मैं बात करूं तो देयर इज नो रेगुलेटरी पेनल्टी बाय आईसीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट, बट देयर मे बी इन फ्यूचर ऑल्सो. जहाँ पर बैंकर्स कहते हैं कि आईसीआई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबमिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द आईसीआई प्रोनाउंसमेंट, इट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर एज पर द आईसीआई prescribed format, and you are not preparing for that, then they may charge the penal interest penalty. So you have to prepare as per the requirement only. Professional misconduct, अगर prepare नहीं होता है, and if you are not reporting, and this is due to the lack of care by professionals, so it will be treated as professional misconduct.
And legal challenge due to the lack of transparency. You are hiding certain information by not preparing the financials as required. So there may some legal challenges by the vendors and other party. So in short, if we talk about कि हमें जो फाइनेंशियल्स बनाने हैं गाइडेंस नोट के अकॉर्डिंग नहीं बनाने, अदरवाइज हम फ्यूचर में देखेंगे दिस इज द फर्स्ट ईयर 24-25 के फाइनेंशियल्स फर्स्ट ईयर है। डाउन द लाइन 2-3 इयर्स बाद हम देखेंगे इन चीज़ों में कितने चेंजेस आ चुके हैं, रेगुलेटर्स कितना अवेयर हो चुका है, रेगुलेटर्स कहाँ कहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है फॉर द एनालिसिस पर्पज, एंड ऑन द डिमांड ऑफ द रेगुलेटर्स ICI has implemented this guidance note to come in the uniformity so that the financials can prepare as per uniform practice. फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट PNB एक्सपेंशन लोन ABC partnership firm wishes to raise loan from PNB and its expansion activity. The bank has required the firm to submit its financial for the year ending March 25 duly attested by CA in practice. So यहाँ पर कोई टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं जूम करके चलता हूँ. Then you have to prepare the financial as per the guidance note only. Second example which had already been discussed कि अगर XYZ proprietorship firm wishes to obtain the subsidiary for its expansion activity, the state government require the firm to submit its financial statement for the last 5 years, including the financial year ending March 2025, duly attested by scene practice. So there is also no tax audit required, and you are required to submit the financials for the last 5 years. So मार्च 25 के और कंपेरेटिव मैं बात करूँ मार्च 24 के, आप फाइनेंशियल्स तो प्रेजेंट न्यू फॉर्मेट्स में बनाएंगे. Earlier years के you have the option to prepare as per old format or as per the new format. But honestly सर अगर मैं बोलूँ तो हम फाइनेंशियल दो तरह की फाइल नहीं करेंगे. जहाँ पर भी मैं रिक्वायर्ड है फाइनेंशियल्स को सबमिट करने के लिए, देन वी विल ट्राई टू कवर कि यूनिफॉर्मिटी हो हमारे फाइनेंशियल्स में. 5 साल की फाइनेंशियल्स अगर मैं सबमिट करना है दे शुड बी यूनिफॉर्म. सो ऑल 5 years शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर द न्यू गाइडेंस नोट. Now coming on the accounting standard part which is applicable in case of SME, non-corporate entity, whether it is MSME or large entity. This is applicable from 8th November 2024 से they have revised this applicability and applicable for the financial year 24-25. हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करते हैं रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल्स की which has been laid down in the IAS, and deal with the under the accounting standard format for presentation of the financial statement of NC have not been prescribed. So AS do not prescribe the format, बट दे प्रिस्क्राइब कि हमें क्या रिकॉग्नाइज करना है, क्या मेजरमेंट करनी है, क्या प्रेजेंटेशन करनी है, क्या डिस्क्लोज करनी है. सर्टेन एक्सपेंडिचर या सर्टेन इनकम या सर्टेन आइटम हमें किस तरह से प्रेजेंट करना है, क्या डिस्क्लोजर डालना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन वो प्रिस्क्राइब करते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस फॉर्मेट में होंगे वो प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मेट ऑलरेडी आ गया थ्रू द गाइडेंस नोट एंड शेड्यूल 3 फॉर द कॉर्पोरेट एंटिटीज. नाउ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइडेंस नोट में अगर मैं एक लाइन निकाली वहां से, दिस से financial statement cannot be described as complying with the accounting standard unless they comply with all the requirement of the each applicable accounting standards. So अभी एक क्वेश्चन आया था AS10 की compliance. So if you are not complying then it will be treated as non-compliance of the accounting standard. This has been written in the 6.3 paragraph of the guidance note where it is clearly mentioned that complying with the accounting standard cannot be said unless they comply all the requirement of the each applicable accounting standards. So you have to follow. अगर प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप NC की बात करते हैं तो जहां पर हम टैक्स ऑडिट में AS का प्रोविजन, जहां पर प्रॉपर्टी में डेप्रिसिएशन के प्रोविजंस AS10 के अकॉर्डिंग नहीं लगाते हैं, देन यू हैव टू डिस्क्लोज कि स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है
और वो हमारे इनकम टैक्स की कंप्लायंस करने के लिए प्रिपेयर किए गए हैं। नोट्स में भी डिस्क्लोज कराएं थ्रू द मैनेजमेंट, और इसको हम इम्फेसिस मेटा पैराग्राफ पे कवर करें। उसका सैंपल इम्फेसिस और नोट्स टू अकाउंट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा थ्रू माय चैनल, सो दैट आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सके अगर एंटिटी AS10 को फॉलो नहीं कर रही है। अगर कर रही है देन नो प्रॉब्लम एट ऑल, देन यू नो नीड टू डिस्क्लोज। और अगर नहीं कर रही है, इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन फॉलो कर रही है, AS10 की वॉयलेशन है, देन यू हैव टू डिस्क्लोज थ्रू नोट्स और योर रिपोर्ट इन द एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ। अगर हम एनसीई की बात करें, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। व्हाट आर दो टू कैटेगरीज? वन इज लार्ज एंटिटीज और अदर वन इज माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज एंटिटी। MSME जो नहीं है डेट विल बी ट्रीटेड एज लार्ज एंटिटी। एंड लार्ज एंटिटी के केस में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जितने भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, total number of accounting standard 29, out of this 2 has been withdrawn. So there are 27 accounting standard that are applicable. Each and every accounting standard is applicable in case of large entity. And अगर large entity नहीं है, MSME है, एंड ये MSME हमारा जो MSMED एक्ट है उससे उसका कोई लिंक नहीं है, सो हमारी AS की MSME कोई डेफिनेशन अलग है। अगर हम उस डेफिनेशन को देखते हैं कि हमारी एंटिटी MSME में कवर होती है, देन सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एग्जम्पशन है कंप्लाइंस की। कौन कौन सी MSME में कवर होंगी? हुज डेट और इक्विटी नॉट लिस्टेड और नॉट इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन इंडिया और अब्रॉड। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, सेपरेट इसके लिए फाइनेंशियल फॉर्मेट्स हैं। टर्नओवर, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। जब हम चेक करेंगे तो प्रीसीडिंग ईयर का चेक करेंगे कि 250 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं था जिसका। एंड बोरोइंग 50 करोड़ से एक्सीड नहीं करती थी इन द लास्ट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। सो बोरोइंग को चेक करेंगे तो हम 365 डेज चेक करेंगे। एक भी दिन अगर एक्सीड करती है बोरोइंग, देन इट विल बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ द MSME परव्यू। And fifth condition is which is not a holding subsidiary of any entity, which is not a MSME. So large entity की अगर MSME कोई holding और subsidiary है, then that shall also be treated as MS large entity. So उसमें यहाँ पर भी कवर नहीं होना चाहिए। सो बाय दिस डेफिनेशन, MSME के लिए हमने ऑलरेडी बताया डेट लिस्टेड, डेट और सिक्योरिटी लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, बैंक इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, बोरोइंग 50 करोड़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, एंड होल्डिंग सब्सिडरी लार्ज एंटिटी की नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देयर आर सम एग्जम्पशंस। क्या क्या एग्जम्पशंस है वो हम देखते हैं। ये एग्जांपल है, मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा, यू कैन गो थ्रू। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर भी प्रोप्राइटरशिप फर्म है जिसको 250 करोड़ की बात करी गई, इंक्लूडिंग FD इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखा जाता है, तो 250 करोड़ से कम है। और 250 करोड़ भी होता देन ऑल्सो इट इज MSME। वहाँ पर लिखा हुआ है शुड नॉट एक्सीड 250 करोड़, सो 250 करोड़ विल बी ट्रीटेड एज MSME एंटिटी। एंड सेकंड दिस वन केस स्टडी विद रिगार्ड टू ट्रस्ट, समृद्धि एजुकेशनल ट्रस्ट, जो डिफरेंट पैरामीटर्स में कवर करता है, टर्नओवर 80 करोड़, बोरिंग 10 करोड़, बट दिस इज गोइंग टू बी लिस्टेड विद जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25। अगर ये लिस्टिंग प्रोसेस के लिए आगे बढ़ रहा है सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, देन इट विल बी ट्रीटेड एज ए लार्ज एंटिटी एंड ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड need to be comply for this entity. लार्ज एंटिटी के लिए सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करेंगे।
अब जो हमने एमएसएमई की बात करी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट एप्लीकेबल फॉर एमएसएमई एंटायरली। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप एग्जेम्पशंस देखेंगे फॉर द डिस्क्लोजर पार्ट है, ग्रॉस डिस्क्लोजर, but here the exemption is entirely. The accounting standard which is entirely not applicable to MSME is AS3, cash flow statement, segment reporting, 20 earning per share, and discontinuing operation. These are not applicable in case of MSME entity. So cash flow requirement is applicable in case of large MSME entity, large non-corporate entities. MSME में अगर covered है, then cash flow is not required, and so on. These अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड एमएसएमई में फर्दर उन्होंने कहा दीज टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, AS22 impairment of assets, these are also not applicable for the certain class of MSME. अब MSME में भी फर्दर अगर उन्होंने डिवाइड किया कि MSME जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है और बोरोइंग 10 करोड़ से एक्सीड नहीं है, स्मॉल MSME यू कैन से। तो यहाँ पर उनमें उस केस में, और विच इज नॉट ए होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ MSME नॉट कवर्ड इन दिस, सो फॉर दोज MSME दिस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी और इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स की टेस्टिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एंड इसके अलावा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एग्जेम्पशंस है विद रिगार्ड टू इंक्रीज डिस्क्लोजर, जहां पर हम डिस्क्लोजर्स की एग्जेम्पशन मिल जाती है बट हम रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट की एग्जेम्पशंस नहीं होती है। सो वी कैन कंक्लूड दिस बाय समराइजिंग कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने एंटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया, लार्ज एंटिटी पे सारे यस एप्लीकेबल हैं। एमएसएमई में ऑलरेडी हमने कुछ क्लास ऑफ एंटिटीज को कवर किया जहाँ पर कुछ एग्जाम्पशंस फुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की है। कुछ और फर्दर एमएसएमई में हमने छोटे एमएसएमई की बात करी जिनकी 50 करोड़ और 10 करोड़ की बोरोइंग एक्सीड नहीं करती है, तो वहाँ पर रिलेटेड पार्टी और इम्पेयरमेंट की भी एग्जाम्पशंस है। एंड सर्टन अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑल्सो देयर जहाँ पर इंक्रीज डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उसकी चेकलिस्ट भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, AS22। करंट टैक्स की एग्जाम्पशंस नहीं होती, करंट टैक्स के प्रोविजंस रिक्वायर्ड होते हैं बनाने के लिए। एंड वाइल डेफर्ड टैक्स इज एग्जेम्प्ट इन केस ऑफ MSME एंटिटी। सो on the first occasion when the MSME avail this exemption, the accumulated deferred tax asset liability appearing in the financial statement of the immediate previous accounting period shall be adjusted, मीनिंग देयर भाई अगर 24 में एएस कोई एंटिटी लार्ज एंटिटी थी, आपने डेफर टैक्स के प्रोविजन बनाए थे, और 25 में वो एंटिटी स्मॉल MSME में कवर्ड हो जाती है, तो कवर्ड होते ही आप उसके डेफर टैक्स या एसेट्स लाइबिलिटीज को आप उसको रेवेन्यू, ओपनिंग रेवेन्यू रिजर्व या ओनर्स फंड से एडजस्ट करेंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इस चीज का, तो थर्ड पॉइंट, एन एंटिटी मस्ट रिमेन एन MSME फॉर 2 consecutive years बिफोर अवेलिंग एस एग्जेम्पशंस रिलैक्सेशन फॉर MSME। सो 24 में कोई लार्ज एंटिटी, 25 में MSME एंटिटी है, तो MSME की एग्जेम्पशंस उसे 25 में नहीं मिलेगी, 2026 में मिलेगी, क्योंकि 2 consecutive years that entity must remain as an MSME, then only that can claim the exemptions or relaxation from the various accounting standards. And MSME कोई एग्जाम्स, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डिस्क्लोजर या एग्जाम्पशंस क्लेम कर रही है, देन दैट नीड टू बी डिस्क्लोज थ्रू द नोट्स टू अकाउंट। पार्शियली एग्जाम्पशंस है या फुल्ली एग्जाम्पशंस है, दैट नीड टू बी डिस्क्लोज थ्रू द नोट्स टू अकाउंट। व्हाट इफ एनसी डज नॉट अप्लाई कंप्लाई विद द गाइडेंस नोट। 2 पॉइंट्स थे यहाँ पर जो मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट वन, क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर हम एंटिटी कंप्लाई नहीं कर रही है तो क्वालिफाइड ओपिनियन यहाँ पर है राइट साइड में, एंड लेफ्ट साइड में बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन। बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन यदि हम देखते हैं, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट prescribed in the guidance note on the financial statement of non-corporate entities issued by the ICI. In our opinion,
while this represent a departure from the prescribed presentation framework, मैंने यहाँ पर क्लियर लिखा है कि this departure is with regard to prescribed presentation framework. It does not materially affect the information presented regarding the financial position, means balance sheet, or financial performance, profit and loss account, on owner's equity for the year end date. So दिस इज माइनर क्वालिफिकेशन विच टॉक्स अबाउट कि जो हमारी क्वालिफिकेशन है दैट इज विद रिगार्ड टू डिपार्चर फ्रॉम द प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ओनली, नॉट विद द एनी मॉडिफिकेशन इन द फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस। सेकंड हम बात करते हैं जो AS10 की एक बर्निंग इशू है कि AS10 की कंप्लाइंस एनसीई के केस में नहीं हो पाती है। एनसीई के केस में अगर AS10 की कंप्लाइंस हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? जो उसका बेटर सोल्यूशन है मैं बात करूं, हम इसको नोट्स टू अकाउंट में प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंदर ए स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क में कवर करेंगे। और यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं, वी हैव प्रिपेयर्ड द प्रेजेंटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेमली बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन फॉर्म और कॉन्टेक्ट्स एज prescribed by the guidance note or the financial statement of non-corporate entities issued by the ICI. We have prepared and presented the financial statement by broadly following the tax basis of accounting policies concerning recognition and measurement principles, following the various provisions of the Income Tax Act and Income Computation ICDS. Hence, not followed the accounting standard issued by the ICI, where यहाँ पर ये लाइन क्लियरली दोबारा पढ़ रहा हूँ, and disclosure standard, hence not followed the accounting standard issued by the ICI, where these income tax provisions are inconsistent with the AS. जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट हैं जहां जहां पर, वहां पर हमने इनकम टैक्स के प्रोविजंस को कंसीडर किया है जो एएस से इनकंसिस्टेंट है। सो इट इज, फॉर इंस्टेंट मैंने डेप्रिसिएशन का पैराग्राफ यहाँ कवर कर दिया है। सो यू कैन राइट दिस इन द नोट्स टू अकाउंट इन द मैनेजमेंट पार्ट, एंड एज ए ऑडिटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको इम्फेसिस मैटर पैराग्राफ में कवर करें। Emphasis matter paragraph में we draw the attention, note number one, basis of the preparation of the financial statement, significant accounting policy which described that the financial statement had been prepared, presented under a special purpose framework, primarily in accordance with the recognition and measurement principle prescribed under the provisions of the Income Tax Act. Accordingly, these financial statements may not be considered fully compliant with the applicable AS issued by the ICI, as certain requirements of the relevant AS standards do not appear to have been fully met under this framework. Our opinion is not modified in respect to this matter. So, through this emphasis matter paragraph, we have covered that our report is not modified, but we want to draw the attention that financial statement has been prepared under the special purpose framework, and they've considered the primarily the measurement principle prescribed under the provisions of the Income Tax Act. So you can write, और alternate procedure जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि AS10 की compliance कराएं। सो इट इज डिपेंड ऑन द एंटिटी कि अगर क्या कर रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं हम AS10 की कंप्लायंस बिकॉज ऑफ द ग्रॉस ब्लॉक ऑफ द एसिड कॉन्सेप्ट इन द इनकम टैक्स जो हम ऑलरेडी प्रिपेयर करते आ रहे हैं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट इस गाइडेंस नोट से पहले भी थी। AS10 को कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट पहले भी थी बट हम नहीं करते थे। बट आज की डेट में अगर हम बात करें तो दिस इज द करेक्ट वे कि हम इसको अगर नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियल्स मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, उसको सेपरेट नहीं अलग कर पा रहा है, यूजफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट जो एसटीएम में प्रिस्क्राइब्ड है, तो हम यहाँ पर इस चीज़ की इस पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। So this is all with regard to financial statement of non-corporate entities. Other matters are not relevant in the presentation because we want to highlight, we want to discuss the financial statement of non-corporate entities। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे प्रिपेयर्ड होंगे, अगर मैं बात करूं तो वही जो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के प्रेस्क्राइब थे, उसी फॉर्मेट में अगर ब्रॉडली देखें तो ओनर्स इक्विटी के बाद
करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, इस तरह फॉर्मेट्स को प्रिस्क्राइब किया गया है एंड उसी फॉर्मेट में हमें प्रिपेयर करना है। अगर किसी एंटिटी पर, प्रोप्राइटरशिप फर्म पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपको सेपरेट रिपोर्ट इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्लॉज 3 में उस अपनी रिपोर्टिंग को डाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल्स केवल आपके पास अटेस्ट करने के लिए आते हैं, जहां पर आप केवल अटेस्ट करो, टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन यू हैव टू इशू अ सेपरेट रिपोर्ट एज पर ऐसे 800 स्पेशल पर्पज रिपोर्ट। अगर हम स्पेशल पर्पज रिपोर्ट को देखें यहाँ पर, मैं आपको एक बात दिखाना चाहूँगा सो डैट हम इस चीज़ को समझ सकें कि विदाउट इशूइंग एनी ओपिनियन, एनी सर्टिफाइंग एनी फाइनेंशियल इज नॉट करेक्ट। वी हैव टू इंश्योर दैट each financials must be comply with a separate report. See, यहाँ पर हम आपको शो करते हैं। दिस इज द report you have to prepare in case of non-corporate entities which does not have tax audit or other requirement. Independent auditor reports. It is also talking about, in our opinion, a complying financial statement give a true fair view of the financial position of the entity and or its performance for the year ended in accordance with the accounting standard issued by the ICA. So you are writing कि this is as per the accounting standard. So if the entity is not complying with the accounting standard, you have to write in your audit report. So this is one page audit report in case of non-corporate entities and which does not have requirement of the tax audit or any other audit required by the law. Uh, any question in this regard? I will take up all the questions now. I hope I have covered all the points in the financial statement of NC. आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, you can post in the chat box so we can take up. Through questions we can also discuss something. Good evening. Good evening. Mandatory. This is all query, not query. Depreciation to be calculated as per AS 10 instead of income tax. Absolutely correct. हमने अगर नहीं कर रहे एंटिटी तो किस तरीके से मैं करना है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। दया शंकर जी, if provisional statement for the part of the year has to be issued, comparable part of the previous year will be required. Yes, of course सर, जहाँ भी हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं कंपेरेबल रिक्वायर्ड है, whether it is limited review, whether it is prospective financial information or any other thing, you need to prepare comparable financial statement. Is there any amendment to the concept of the prior period expense? No amendments, sir. And next concept of the, sir, how we can show the data scattered in the balance sheet, because there is no specific area specified in the notes to account where we can disclose the balance and balances of debtors. Uh, it question is not clear. Debtors creditors के लिए तो separately balance sheet में there had current assets and current liabilities. You have to disclose the debtors and creditors under this category. यूट्यूब पर अपलोड होगा, यस। पीपीटी के लिए आई विल शेयर ए लिंक वेयर हम, जहाँ पर हम हमारी जितनी भी प्रेजेंटेशंस हैं और इन फ्यूचर में ऑडिट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, बिकॉज ऑडिट अवेयरनेस इज वेरी मच मैंडेटरी इन द प्रेजेंट टाइम, जहाँ पर हमें ड्राफ्ट इंगेजमेंट लेटर, मैनेजमेंट लेटर, यूज ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर हम क्यों करते हैं, करते हैं तो उसका क्लाइंट से हमें क्या लेने की रिक्वायरमेंट है,
These need to be take up all the required document, draft document I will share in my YouTube WhatsApp चैनल. मैं लिंक इसका आपको पोस्ट कर रहा हूँ. काइंडली ज्वाइन और फॉलो, सो डैट मैंने अभी जितने भी क्वालिफिकेशन या ये सब डाले हैं ये भी मैं आप लोगों को वहाँ पर शेयर कर दूंगा. प्लीज फॉलो, पोस्टेड इन द चैट बॉक्स. कुछ क्वेरी और थी. प्लीज शेयर द ऑडिट रिपोर्ट. यस संजय जी, आई विल शेयर. प्रिपरेशन ऑफ द एफएस इज responsibility. We auditor need to give the our opinion. अंकुश जी एब्सोल्युटली करेक्ट. मैं यही चीज आपको बता रहा हूँ. हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ते हैं. क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, बट जब हम ऑडिट के टाइम पर उसको इंश्योर करते हैं देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो मैनेजमेंट ने फॉलो किए या नहीं फॉलो किए. यहाँ पर भी हम वही बात कर रहे हैं. गाइडेंस नोट टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एनसी that has to be prepared by the entity. अगर वो entity comply नहीं कर रही है then you have to give your qualification or other report. Sir, client not preparing FS in the new format, then qualification we have to give. Yes, Sumit ji. With regard to already discussed Pawan ji ka point, in case of data entry operators hired through a manpower agency and consultant hired internally may advise if it is to be covered as part. Sir, it will not be covered in the salary. It will be covered in admin contract. You have given the contract. Then need to show the separate expenditure. सैलरी में आप वो कवर करते हैं जहां पर आपका एक एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय. देन यू शो दैट एक्सपेंडिचर थ्रू द सैलरी. How to verify the MSME status? The cloud disclosed in the tax audit report as 40 CBH of the Income Tax Act. सर जितने भी अरुण जी आपका पॉइंट सही है. जहां पर हमारे पास क्लाइंट हैं, हम क्लाइंट से वेंडर से लास्ट ईयर ही हम लोगों ने इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि वेंडर से रिक्वेस्ट करेंगे काइंडली गिव योर स्टेटस थ्रू कम्युनिकेशन, मेल और लेटर. और अगर नहीं पार्टी डिस्क्लोज करती है देन इट विल बी ट्रीटेड एज कि दे आर नॉट कवर्ड इन अंडर एमएसएमई. और कुछ बिल्स में भी लिखा होता है. अपेरेंटली वी कैन चेक द इनवॉइसेस जहाँ पर बिल्स में ऊपर लिखा होता है एमएसएमई. सो एक हमें ऑडिट चेक तो यहाँ पर करना ही पड़ेगा कि हम किस तरह से एमएसएमई में कवर्ड है यानी. दैट नीड टू इंश्योर बिफोर कंक्लूडिंग अवर ऑडिट प्रोसीजर. एनी अदर पॉइंट विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट? Lalit ji, if client not follow the new format, then where we will give our comment or we can comment on true and fair view. ललित जी, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी बताया कि जहाँ टैक्स ऑडिट बना रहे हैं तो टैक्स ऑडिट बना रहे हैं तो क्लॉज 3 होता है जहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर कोई इशू है देन यू नीड टू डिस्क्लोज इन 3A ऑफ द टैक्स ऑडिट. तो वहां पर हम अपनी जो क्वालिफिकेशन थी मैंने शेयर करी थी, डेट विल डिस्क्लोज. इज ए नीड टू शो द बेटर बैलेंस सेपरेट. आ, आप आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं कि ईच डेटर्स के बैलेंसेस सेपरेटली शो करेंगे. नो, सेपरेटली डेटर्स, ईच डेटर्स बैलेंसेस नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज. कंप्लीट ग्रुप में आप सन्डे ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स यू हैव टू डिस्क्लोज. इंडिविजुअली डेटर्स और क्रेडिटर्स को डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑडिट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं हम डाउन द लाइन आप लोगों से शेयर करते जाएंगे क्योंकि ऑडिट की बात करें तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है हमारा ऑडिट कॉन्सेप्ट. ऑडिट की जब हम बात करते हैं तो हमारे इनकम टैक्स और जीएसटी की तरह नहीं है कि हम मॉनेटरी पेनल्टी से क्लाइंट पे करके या आर्ग्यू करके हम सेव कर सकते हैं. जब हम बात करते हैं ऑडिट की तो ऑडिट में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि ऑडिट में अगर कोई डिफॉल्ट है, कोई लैप्सेस हैं, देन इट विल अट्रैक्ट ऑन द ऑडिटर्स पार्ट. ऑडिटर विल फेस द हीट for non-compliance of the auditing standard, guidance note, accounting standard, and various other provisions. So you need to ensure that each and every aspect have been covered. Proper placement of the audit. ऑडिट रिपोर्ट में हमें कहाँ पर क्या कवर्ड करना है, वेदर इट इज
part of the qualification, whether it is a emphasis matter paragraph, other matter paragraph, that need to be disclosed properly. So we have covered my presentation, my concept of this financial statement. If still you have any query, you can post in the chat box. I will take up. I'm here for the few more minutes. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे नेक्स्ट सेशंस की, तो नेक्स्ट मंडे को वी हैव डिजाइन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग ऑफ द रिप्लाई ऑफ द नोटिस इशूड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एंड व्हाट एक्शन रिक्वायर्ड। एंड उसके नेक्स्ट मंडे की अगर मैं बात करूँ 21 को, देन प्रैक्टिकल चैलेंजिंग इन जीएसटी रिफंड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में जहाँ पर जीएसटी रिफंड क्लेम करते हैं, तो व्हाट आर द इश्यूज विल बी कवर्ड ऑन 21st। एंड 14th को इनकम टैक्स के नोटिस। सर डेटर्स क्रेडिटर एजिंग, सर डेटर्स की मैं बात करूं वहां पर एजिंग मोर देन 6 मंथ और लेस देन 6 मंथ का ब्रेकअप है यहाँ पर फाइनेंशियल्स में। लाइकवाइज शेड्यूल 3 में जो था 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स, मोर देन 3 इयर्स, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द guidance note. So I will ask question, we can show the whole balances. So you can show the whole balances as a whole, because it is required कि यहाँ पर आप इंडिविजुअल ईच एंड एवरी अकाउंट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। वहाँ पर आप ग्रुपिंग शो करते हो, जैसे मैंने डेटर्स और क्रेडिटर्स के केस में बताया। इसी तरह लोन या एडवांसेस हैं, तो आप कंसोलिडेटेड अमाउंट यू विल डिस्क्लोज, नॉट सेपरेट ईच एंड एवरी आइटम। वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन साइंड। दीपाली जी, यू आर सेइंग कि लास्ट ईयर के एक्सपेंडिचर थे इस साल डेबिट किए गए हैं, तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस एंड यू कैन disclose as far as GST, as auditor we have to comment on the ITC allowed or disallowed. We are not doing GST. Definitely we are not discussing GST. मैं चैनल का लिंक दोबारा डाल रहा हूँ। मैंने हमारे कासा चैनल का लिंक आप लोगों को दोबारा शेयर कर दिया है। मैं एक बात फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग व्हाट्सएप पर जाकर चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पर हम रेगुलरली आप लोगों को अपडेट्स, जितने भी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, अपडेट्स हैं, वो शेयर करते हैं। एंड अपकमिंग मंथ में आई विल ट्राई टू शेयर ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, वेदर इट में इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, कारो रिपोर्ट, आईएफसी रिपोर्ट, ड्राफ्ट पैराग्राफ्स, क्वालिफिकेशंस, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आई विल ट्राई टू शेयर। दीपाली जी, यू आर सेइंग दीज आर इनकम्स, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सेम प्रायर पीरियड इनकम। आई थिंक ये आप जीएसटी से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो आई एम अनेबल टू आंसर। बट एज फार एज अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंसर्न, देन यू हैव टू कंसीडर दिस इनकम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड separate, no separate treatment for this, but separately इनकम ऐसे जीएसटी के पॉइंट से आप राइटली डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो आप हमारे चैनल पर, ग्रुप पर पूछ सकते हैं। So I hope I have addressed the all the issues, such as the GST turnover. Ma'am, this is not the GST discussion, and I am not aware of this. But your answer is concerned. Shall the GST turnover be the same as financial year? जीएसटी टर्नओवर, जीएसटी में जो ट्रीटमेंट होते हैं, टर्नओवर मैच करेंगे नहीं करेंगे, डेट हैज अ सेपरेट इशू। एंड वो नहीं भी करते हैं, तो आपको रिकंसिलेशन में 9 और 9C के थ्रू आपको रिकंसाइल करना पड़ता है।
अजय जी, आपने आई थिंक लेट ज्वाइन किया है। मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर मैं AS10 फॉलो करने की रिक्वायरमेंट पहले भी थी, आज भी है, इन फ्यूचर भी है। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग AS10, देन यू कैन राइट दिस इन द नोट्स टू अकाउंट थ्रू द मैनेजमेंट, और दिस पॉइंट हैज बीन कवर्ड थ्रू द एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ। और इसका ड्राफ्ट एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ और ड्राफ्ट नोट्स मैंने प्रिपेयर कर दिया। दैट विल बी शेयर थ्रू द कासा चैनल, because all accounting standard and relevant accounting standard need to comply with for all the entities also. So हम by saying कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वहाँ पर टैक्स का, इनकम टैक्स के प्रोविजंस फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम उस चीज़ को लिखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क in compliance with the income tax act. So with this, now I'm closing the today's discussion, and thanks to each one of you for wonderful attention and making this Monday Manthan successful. Any last remark you can, any lastly you want to anything you can say. Otherwise, I hope I have addressed all the issues. आपके कोई भी और कंसर्न हो, यू कैन पोस्ट मी थ्रू माई मोबाइल नंबर, मैसेज मी, व्हाट्सएप मी। मैं व्हाट्सएप नंबर भी अपना लिख रहा हूँ, सभी के पास होगा। फिर भी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर डाल दिया। यू कैन मैसेज मी योर एनी क्वेरी, और फॉर ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट यू कैन फॉलो आवर कासा चैनल। सो थैंक यू वेरी मच once again for joining. Thank you.